اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو آج مورخہ 1 اگست 2020 میں جو آنے والی عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آج ادا کی جانے والی تمام قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، میں ابھی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد بہت گہرا ہے، آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں 19 جولائی بروز اتوار فیصل آباد میں ایک انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان کے مرکز کی جانب سے مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں انصاری متحدہ مومنٹ کی پالیسیاں مرتب کی گئیں، جس میں سیاسی پالیسی، فلاحی پالیسی اور تنظیمی پالیسی شامل ہے۔ وہ انہی دنوں منظر عام پر نہیں لائی گئی کیونکہ اس میں کچھ مزید جو ہے وہ تبدیلیوں کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ مرکزی ساتھیوں اور دوستوں نے مل کر ایک جامع جو ہے نا وہ منصوبہ جو پلان و ترتیب دے دیا ہے۔ دوستو، انصاری متحدہ مومنٹ پاکستان آج سے 11 سال قبل 23 مارچ 2009 میں معرض وجود میں آئی اور پھر اپنا سفر طے کرتی پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ بلا شبہ جو انصاری متحدہ مومنٹ نے آج تک ویلفیئر کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج آپ گلی کوچے میں دیکھیں، سب سے بڑی جو کامیابی ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو انصاری برادری کے لوگ ہیں وہ اب فخر سے اپنا نام جو ہے وہ انصاری لکھتے ہیں، کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ حقیقت سے آشنا ہو گئے ہیں۔ اصل میں اپنے مقام، جو ان کا اصل مقام ہے اس کو پہنچ گئے ہیں، وہ پہچان لیا انہوں نے۔ لیکن انصاری متحدہ مومنٹ نے جتنی بھی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور جتنا ورک کیا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پاکستان میں اس وقت اور بھی بہت ساری برادری کی جماعتیں کر رہی ہیں، اور پچھلے 70 سال میں 300 کے قریب جماعتوں نے ورک کیا ہے۔ باشمول انصاری متحدہ مومنٹ نے جو ورک کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کے لیے ناقابل کافی ہے۔ یہ جو آج تک کا جو ورک ہوا ہے، یہ بجائے جو دوسری برادریاں ہیں ہماری معتبر، جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہماری انصاری برادری کو بھی ان کے برابر کھڑا کرتی، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تک صحیح طرح سے انصاری متحدہ مومنٹ جو ہے انصاری قوم کی احساس کمتری بھی دور نہیں کر پائی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو پورے پاکستان بلکہ خصوصاً پنجاب کے تقریباً 36 اضلاع لگا لیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ قصبے، علاقے، گلیاں کوچوں میں جا کے ہم نے انصاری کنونشن منعقد کیے، میٹنگ منعقد کی، اجلاس منعقد کیے، اور ہر علاقے میں انصاری کی جو حالت ہے مالی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی، اس کو پرکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ اجلاس، یہ کنونشن یہ کیوں کرتے تھے؟ ہم ایک تحقیقاتی عمل سے گزر رہے تھے، ہم مشاہدات کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو یہ انصاری برادری، جس کو آج سے 1400 سال قبل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کر ان کی آثار، قربانی اور کردار کی بنا پر انصار کا خطاب دیا، اتنا بلند مقام دیا، لیکن آج یہ اس مقام سے کوسوں دور ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں اور کیوں سابقہ جماعتوں نے وہ وجوہات دور نہیں کی؟ تو بڑے لمبی تحقیق کرنی پڑی ہمیں، جگہ جگہ جا کے ہمیں دیکھنا پڑا، اور اتنے عرصے کے بعد ہم آج آپ کو یہ کہنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ انصاری متحدہ مومنٹ نے اپنے 11 سالہ سفر میں انصاری برادری کا وہ مرض ڈھونڈ لیا ہے، وہ تکلیف ڈھونڈ لی ہے، وہ وجہ ڈھونڈی ابھی جا کے کہ کیا وجہ ہے، وہ کس وجہ سے انصاری برادری جو ہے وہ سٹینڈ اپ نہیں ہو رہی اور اپنے مقام پر نہیں جا رہی۔ اور اگر 11 سالوں میں ہم نے یہ مرض ڈھونڈا ہے تو اس کی جو اب علاج ہونا ہے، جو اس کا جو پریکٹیکلی عمل ہونا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کافی لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم 10-11 سالوں میں نہیں لڑکھڑائے تو آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ آگے بھی نہیں لڑکھڑائیں گے، نہ بکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ ڈریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح اس قوم کو لے کے چل رہے ہیں، آج ہم اس مبارک دن کا جو وقت ہے، عید الاضحیٰ کے دن، تو میری خواہش ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج انصاری متحدہ مومنٹ نے اپنا
प्रैक्टिकली जो वर्क है वो स्टार्ट कर दिया है। आज हम अपने मंसूबे की जो पेपर वर्क था, जो तहकीकात थी, जो तजर्बात थे, उसको सामने रख के हमने अब हम उसको अमली तौर पर माशरे में लागू करने जा रहे हैं। तो जो अंसारी इम्तिदा मूवमेंट ने पॉलिसियाँ मरतब की हैं, वो मैं उसकी जो क्या कहते हैं हेडिंग जो है, उसका जो लुब्बे लबाब है, वो अभी आपके सामने पेश करूँगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरह करना है, क्या तरीक़ाकार है। वो लंबा पीरियड है, वो आपको मरलावार हम जो है ना गाइड करते रहेंगे। सबसे पहले जो अंसारी इम्तिदा मूवमेंट ने अपनी सियासी पॉलिसी अपनाई है, उसके मुताबिक हमने ये देखा है कि इस कौम को सियासी वडेरों, ज़मींदारों, जागीरदारों ने जर्ग बना रखा है। सियासी जब इलेक्शन के दिन आते हैं, जब माहौल गर्म होता है, अपनी चकनी चिपड़ी बातों से इस कौम को बहकावे में लाकर अपना वोट ले जाते हैं। और जब जीत जाते हैं तो जिन लोगों से उन्होंने हार डलवाए होते हैं, जिन लोगों से कुर्सियाँ लगवाई होती हैं, जिनसे नारे मंगवाए होते हैं, जिनका लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया होता है, जब ये जीत जाते हैं और फिर कोई मराहत आती हैं, कोई इनका कोटा जॉब सिस्टम आता है, कोई ठेका आता है, कोई भी लवाजमात आते हैं, फिर इनको वो बरादरी के मुखलस लोग नज़र नहीं आते। फिर उनको अपनी बरादरी के ताए चाचे मामे के जो लोग हैं वो नज़र आते हैं, अपने इनके बच्चे नज़र आते हैं। ये फिर इस कौम के लिए ये कुछ नहीं करते। ये एक बड़ी वजह है कि हम सियासी तौर पर इन लोगों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इस कौम को इस शिकंजे से निकालने के लिए अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर होने जा रही है और अपना इंतखाबी निशान अलाट करा रही है। पॉलिसी ये है कि जैसे ही हमारा इंतखाबी निशान अलाट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो हम मुल्क की सतह पर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बजाय अपने ज़िले की सतह को देखेंगे। जो हमारा ज़िली सदर होगा और जनरल सेक्रेटरी होगा, हम ये इख्तियारात उनको देंगे, ताकि ना तो ये अंसारी इम्तिदा मूवमेंट बदनाम होगी कि इन्होंने ये कोई बिके हैं झुके या मामला है या कोई ऐसी वैसी बात है, और ना ही बरादरी जो है वो हिस्सों में लड़ाई करेगी, बटेगी, बल्कि मुत्तहद होगी ज़िली सतह पर। हम उस ज़िली सदर को, जनरल सेक्रेटरी को ये इख्तियार दे देंगे कि वो अपने इलाकाई सूरत-ए-हाल को देखते हुए, अपने इलाकाई ताल्लुकात को देखते हुए, इस बरादरी को बेनिफिट देने के लिए, इस बरादरी की भलाई के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए वो अपनी जो है ज़िली सतह पर बेहतर जो फ़ैसला कर सकते हैं, वो फ़ैसला करने के खुद मुख्तार होंगे। जो हमारी फलाही पॉलिसी है वो बहुत पेचीदा है, बहुत लंबी है, बहुत उसके ऊपर हमने वर्क किया है। और इसको जो मैं आपको आज ऐलान करने लगा हूँ, अल्लाह ताला आज ईद उल अज़हा के इस मुबारक दिन के सदक़े या अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाब करना। हमने ये देखा है कि अंसारी बरादरी की जो अक्सरियत है, जो बच्चे हैं हमारे देहातों में और कस्बों में और पसमानदा इलाकों में, बहुत बड़ी तादाद जो है वो तबाह हो रही है। वो स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ नहीं पा रहे और गली कूचों में जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन आँखों से हम मुशाहदे करके आए हैं और यही वो बीमारी है बड़ी जो हमारी आने वाली नस्ल को लगी हुई है। और बहुत बड़ी तादाद हमारी अनपढ़ है जो बेचारी इस माशरे पर बोझ बनी हुई है। और हमने ये फ़ैसला किया है कि अपनी उस नस्ल को बचाने के लिए उस नस्ल को बचाने के लिए और उसको इस मुल्क में स्टैंड अप करने के लिए और दूसरी बरादरियों के साना बशाना चलने के लिए अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तालीमी अदारा तामीर करने जा रही है। तालीमी इदारा जिसमें हमारे वो बच्चे, वो शहर से हों या देहात से हों, उन बच्चों को हम वहाँ से उठाएंगे और उस अदारे में लेके आएंगे। वहाँ पर उनका सूट, उनका बूट, वहाँ पर उनका सूट, उनका बूट, उनकी किताबें, उनका जो खाना पीना नाश्ता, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी स्पोर्ट किट्स, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट उनको मुहैया करेगी और एक आला तालीमी याफ्ता वहाँ से नौजवान पैदा करेगी। और ये बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा आलमी तालीमी इदारा जो हम तामीर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हमारी कौम जो है इस पस्ती से, इस पसमानदगी से निकलकर दूसरी कौमों के शाना बेशाना खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। तीसरा हमारा जो फलाही सियासी फलाही और तीसरा जो हमारा तंजीमी पॉलिसी है वो ये है कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट ने बड़ी तहकीक के साथ
अब साइंटिफिक तरीके से तंजीम साजी का आगाज़ कर रही है, और इसका मकसद ये है कि गली गली कूचों में तंजीम साजी करके इस कौम को मुतहद किया जाए, और मुतहद को किया जाए ताकि हमारा वो तालीमी अदारा खड़ा हो सके और हम सियासी ताकत बनकर जो है वो सामने आ सकें। तो इसलिए इस तीनों स्टेप को मिलाकर जो अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट ने इस मंसूबे को नाम दिया है वो है अंसारी प्रोजेक्ट। आज ईद उल अज़हा के मौके पर अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट अंसारी बरादरी के लिए अपने अंसारी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रही है, जो रोज़ाना की बुनियादों पर, डेली बेसिस पर या वीडियो बयान या सवाल जवाब की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी और इस कौम की रहनुमाई करेगी। आप लोग ये मेरा वीडियो बयान देख रहे हैं, इसके ऊपर आप मुझसे सवाल जवाब कीजिएगा, मैं आपको जो है उसका जवाब दूंगा। इसी आपके सवाल और हमारे जवाब की वजह से इस कौम की जो तरबियत होगी, इस कौम को हम सिखाएंगे, और मेरे समेत मेरे जो मरकज़ी साथी हैं वो भी ये बयानात जारी किया करेंगे। और इसी तरह हम आपको जो पॉलिसी की जो अब अगली शिक्के हैं, अगले मरहलात हैं, वो आपको मरहलावार बताते जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों, ये कोई गली महल्ले की वेलफेयर नहीं है कि किसी बच्ची की शादी कर दी है तो चलो फ़ंड इकट्ठा कर लिया, किसी की फौत की हुई है तो चलो वहाँ पर टेंट पहुँचा दिया, किसी को किताबें चाहिए तो चलो बस्ते किताबें लेके दे दी। नाटा, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, अंसारी प्रोजेक्ट है, और हमने इसकी जो मियाद रखी है वो 20 साल है। 20 साल मुहित अंसारी प्रोजेक्ट इस कौम के लिए हम लेके आए, जिसको हम लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का, इस कौम ने इस मिशन का साथ दे दिया तो 20 साल बहुत दूर हैं, हम बहुत जल्दी एक आलमी सतह का हम प्रोजेक्ट खड़ा करने में तैयार हो जाएंगे। और ये जो अंसारी प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहिए, आपको डेली बेसिस पर बयान मिलेंगे, आपने हमने सवाल करना है, हम आपको उसका जवाब देंगे और सारी तरतीब भी बताएंगे, क्योंकि हमने बड़ा लंबा सफ़र तय करके अब ये चीज़ें जो है वो तैयार की हैं। इंशाअल्लाह ताला इस बार इस कौम को हम गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो इनका मकाम है, जो अल्लाह के रसूल ने इनको मदीने में मकाम अता किया है, उस तक पहुँचा के ही छोड़ेंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है, और आप लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट का साथ दीजिए और इस अंसारी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए, इसको समझिए, इसके ऊपर अमल कीजिए। मियाँ रमज़ान को ना देखिए, अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट को ना देखिए, अंसारी प्रोजेक्ट को देखिए, अंसारी मिशन को देखिए, इसके साथ शामिल होकर हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। सब दोस्तों को आखिर में मैं मियाँ मोहम्मद रमज़ान अंसारी आज ईद उल अज़हा के मौके पर जो है वो सलाम पेश करता हूँ। अपनी तरफ से भी, पूरी अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट की तरफ से भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मियाँ मोहम्मद रमज़ान अंसारी, सदर अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।